100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं, अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। कैनवास में रंग भरकर उसे जीवित बना देना एक कला कहलाती है। इसी तरह अपनी जमा पूंजी बढ़ाकर जिंदगी बना लेना भी एक कला ही है। मैंने भी ये स्टूडियो ऐसे ही बनाया है, पाई पाई जमा करके। मुझे भी लोग फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, मुझे कन्विंस करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी है। उन लोगों के भी रेफरेंसेस देते हैं जिन्हें फ़ायदा हुआ है, पर मैं अपनी रिसर्च खुद करती हूँ। आपको भी यही करना चाहिए। सरकार के कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जाकर आप अपने निवेश से संबंधित पूरी जानकारी ले सकते हैं, और ये वेबसाइट्स हैं मैं अपने पैसों को लेकर सावधान रहती हूँ, आप भी रहिए। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। So welcome back. So just before the break, we had finished with our discussion of the fixed returns versus the variable return investments. Now we are going to take forward our discussion, and now we are going to discuss about the various investment avenues. So the various investment avenues, as you will see, one of the investment types is the capital and debt market. We'll discuss about this in a little detail. Then there are insurances, the insurance policies. There are bank deposits. Then there are mutual funds, again, which are capital market. There are PPF and other investment tools like Sukanya Samriddhi Yojana. Then there is real estate. And there is gold. Obviously, we talk a little less about gold because अगर आप मैरिड हैं या आपकी शादी होने वाली है तो उस सिनेरियो में गोल्ड is going to become your automatic investment. क्योंकि अब like my wife, she is more bothered कि ये सारी की सारी investments in cash कब होंगी, and she is just waiting for them to be encashed ताकि gold में investment हो जाए. But we have to be mindful, and so that is only why we have to, that is another reason why we must increase the horizon of our investment ताकि वो सारी immediately encash होके gold में ही ना invest हो जाए. So now we talk about capital market. In a very, very layman language, I will say capital market मतलब stock market. उसकी दो types होती हैं, primary market and secondary market. So the underlying difference between the primary market and the secondary market is, जब भी कोई company fund infusion चाहती है, तो वो अपने शेयर को list कराती है. List करा के वो एक initial public offer लेके आती है और public से कहती है कि आओ मेरी company में invest करो. Now we then take a call and take a decision whether the business of that company is viable or not for us to invest. अब हमें वो viable लगता है तो हम उसमें invest करते हैं. Once the shares get allotted, then the buying, selling and the trading of those shares, that happens in the secondary market. Why should we invest in capital market? Equity में हम क्यों invest करें? अब equity में invest करने के कुछ खास वजह हैं. वो क्या हैं? सबसे पहली वजह यह है
कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कुछ भी मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है. आप किसी भी कंपनी का एक शेयर भी खरीद सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है. आप यू कैन स्टार्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट विद एज लिटिल एज इवन 100 रुपीज़. आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, वो 100 रुपये का है, आप एक शेयर बाय कर लीजिए ना, आपको कोई मनाही नहीं है. देन द अदर very major benefit for equity investment which has been developed very of late is the very user friendly mobile applications. Now how easy it has become with the eKYC and Aadhaar based signatures. It has become so easy to open the demat and the trading accounts. आप accounts खोलें और straight away you can just start investing. और ये मोबाइल आपके साथ साथ चलेगा. Whenever you want to track the movement of any share, you can track it instantly. और आप उस पर कॉल भी ले सकते हैं whether you want to sell it or you want to buy it. Then again, as I've stressed earlier as well, ये इन्वेस्टमेंट्स बहुत लिक्विड है. आप शेयर को बेचते हैं, शेयर को बेचने के तीसरे दिन आपके बैंक अकाउंट में, तीसरे से चौथे दिन आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है. तो आपको वेट नहीं करनी पड़ती, किसी के पास नहीं जाना पड़ता कि मेरे पैसे निकाल दो, मेरे पैसे इन कैश करा दो. एंड देन द फोर्थ रीज़न, which is largely considered as the major reason why people enter into the stock markets. The returns are considerably higher. आपके बहुत सारे ऐसे relatives, friends ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी आपको बताया होगा, यार मैंने फलाना शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया, मेरे पैसे 10 गुना हो गए. और भाई 10 गुना हो गए कितने टाइम में हो गए? 2 साल में. आपको लगता है कि वाह यार, शेयर मार्केट में लगाएंगे पैसे, शेयर मार्केट के अंदर डाल देने और 10 गुना कर लेने अपने सारे पैसे. तो हमें कॉशियस भी रह करके इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में, बिकॉज हर शेयर 10 गुना नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गेन नॉलेज. आप प्रॉपर नॉलेज गेन करके ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू हैव टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड जो फाइनेंशियल्स होते हैं कंपनी के, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं. यू हैव टू सी द प्रमोटर्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क दैट यू हैव टू डू. अच्छा, अब ये सब कैसे करें? मुझे तो पता ही नहीं है. मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ. आई एम नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड. तो अब मैं क्या करूँ? क्या मैं कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? कर सकते हैं. देयर इज़ अनदर वे ऑफ इट, एंड दैट वे आई थिंक एवरीबडी हैज़ हर्ड अबाउट इट, क्योंकि आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट्स चल रही हैं. इट्स म्यूचुअल फंड्स. अब म्यूचुअल फंड्स क्या है? बेसिकली म्यूचुअल फंड्स एक पूल है आपके, मेरे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने ये कॉल ले ली कि भैया हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये कंपनी बढ़िया या ये कंपनी बुरी. हमें नहीं पता ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना. हम इसके प्रमोटर को कैसे जाने? हम तो नहीं जानते इसके प्रमोटर को, हम तो कभी मिले ही नहीं उनसे. तो हम कैसे बताएं कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? तो वो इस सिनेरियो के अंदर आपको एक ईजी ऑल्टरनेटिव मिल जाता है, विच आर म्यूचुअल फंड्स. अब ये म्यूचुअल फंड्स में हम सब पैसा डालते हैं, बट इसको मैनेज कौन करता है? पीपल हु पोजेस who possess that knowledge, who possess the technical expertise to take the calls कि उन्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कब करना है, कब उससे बाहर निकलना है, और कब अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है. तो ये जो फंड मैनेजर्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी वेल अवर्स विद ऑल दीज टेक्निकल नॉलेज. उनके पास ये भरपूर होती है. तो हम बेसिकली अपना डिसीजन उनके ऊपर छोड़ देते हैं. हम तो कहते हैं कि भाई हमने इस म्यूचुअल फंड को चुन लिया, हम इसके अंदर पैसे डाल देते हैं, अब आप अपने हिसाब से कॉल ले लीजिए और हमें पैसा कमा के दे दीजिए. अब देयर इज अनदर रीजन व्हाई यू वुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. अगेन, जस्ट लाइक द इक्विटीज, दीज आर ऑल्सो वेरी इजी टू इन्वेस्ट एंड वेरी इजी टू रिडीम. इसमें भी सेम वही 3 से 4 दिन में आपके पास इनकैश करने के बाद आपके पास पैसा आपके बैंक में आ जाता है. These investments are also very very liquid, again because of the same reason. अब उसके बाद एक पैरामीटर है जो कि हमें पास्ट ट्रेंड्स बताते हैं, but I understand it is not a parameter to make an assumption that the future is also going to be just like the past has been. But yes, there is something which past tells us, and what it tells us about the mutual funds is कि आपकी कैपिटल इसमें कैपिटल इरोजन के चांसेस बहुत मिनिमल है. चांसेस बहुत कम है कि आपने इसमें 100 रुपये लगाए और वो 100 रुपये आपके 50 रुपये रह गए या 60 रुपये रह गए. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट इज इन अ बियर मोड. Just after you have invested, the market comes in a bear mode, like it happened during the COVID times. I remember it was March 2020.
आई थिंक द मार्केट वॉज एट इट्स लोएस्ट. उस टाइम पर अगर आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने वालों के आसपास थे तो आपको उन्होंने एक ही सलाह दी होगी कि भाई इक्विटी में पैसा मत लगाना, अब तो सब बर्बाद है. इंडियन मार्केट इज़ गोइंग टू कोलैप्स, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कोविड आ गया है, सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप इक्विटी में पैसा मत लगाना. मगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट उस टाइम पर जितनी वो डाउन थी, इट कॉट अप, इवेंचुअली इट कॉट अप. तो इसलिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर बेसिकली आप पैसा लगा देते हैं और आप पैसा लगा करके यू जस्ट सिट बैक एंड यू रिलाई ऑन दोज प्रोफेशनल्स हु आर मैनेजिंग दैट फंड. देन अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक और तरीका, इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. नाउ लेट्स से यू हैव अ कॉर्पस, आपने लेट्स से आपने at the age of 30 you made an investment, you started an investment in PPF, and by the time you reach the age of 45 आपके पास एक बहुत ही हैंडसम कॉर्पस इकट्ठा हो गया, कोई 50-60 लाख रुपए का. अब क्या करें? क्या ये 50-60 लाख रुपए पूरा डाल दें म्यूचुअल फंड के अंदर? भाई कैपिटल तो इरोड होती नहीं और रिटर्न्स भी बहुत हाई देता है, तो क्या हम सारा का सारा पैसा डाल दें? सो देयर इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू इट. आप क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट वन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. अब ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? कुछ नहीं है, रिकरिंग डिपॉजिट आप सब जानते हैं, आरडीज आप सब ने कभी ना कभी खोली हैं. एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वुड गो एज एन इन्वेस्टमेंट. आप उसके अंदर पीरियोडिसिटी सेट कर देते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, आपके बैंक में से उतने रुपए हर महीने डिडक्ट हो जाते हैं और उसके यूनिट्स परचेज हो जाते हैं. जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी के आपने इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है. तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इज़ अ वेरी वेरी एफिशिएंट टूल विद रिस्पेक्ट टू वन एस्पेक्ट विच इज़ द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एस्पेक्ट. अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या हुआ? बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ. शेयर मार्केट तेज़ है, आपकी SIP 3,000 रुपये की है, तो एक म्यूचुअल फंड की NAV हो सकता है तेज़ मार्केट में 50 रुपये की है. तो आपके जो नंबर ऑफ यूनिट्स इशू होंगे 50 रुपये में, वो रिलेटिवली कम होंगे एज कंपेयर टू व्हेन द शेयर मार्केट गोज इनटू द बियर मोड एंड द NAV फॉल्स डाउन टू 20. अब उस टाइम पे आपकी 3,000 रुपये की SIP आपको ज़्यादा यूनिट्स फेच करेगी. इफेक्टिवली क्या हुआ? महंगे में कम खरीदा, सस्ते में ज़्यादा खरीदा, एवरेज आउट हो गई कॉस्ट. सो यू गेट अ वेरी वेरी गुड बेनिफिट आउट ऑफ दैट. तो इस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव टूल फॉर इन्वेस्टमेंट. अब मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ SIPs का. अगर आप SIP को, अगर एक SIP को आप 1,000 रुपये की SIP को यू स्टार्ट दैट SIP एट अ वेरी अर्ली एज एंड यू कैरी इट ऑन फॉर अ टेन्योर ऑफ से 30 ईयर्स, एक 1,000 रुपये की SIP एट एन XIRR ऑफ 12%. आई विल एक्सप्लेन यू द XIRR एज वेल. एक 1,000 रुपये की SIP 12% XIRR पे 30 साल के लिए आपको कुछ 59 लाख रुपीस देती है. ये अमाउंट अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट को 5 साल से कम कर दूं, लाइक आई हैव टोल्ड यू, इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर 30 ईयर्स, नाउ इफ यू आर इन्वेस्टेड फॉर लेट्स से 25 ईयर्स, तो ये अमाउंट आधी होती चली जाती है. दैट इज हाउ एफिशिएंट SIPs आर. तो इस वजह से SIPs आर अ टूल विच यू शुड इन्वेस्ट इन एज सून एज पॉसिबल. तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा करके SIP देगी. नाउ we'll further discuss about the do's and the don'ts of capital market. अब स्टॉक मार्केट है, एक रिस्की एवेन्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है. इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो आपको फॉलो करनी है और कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी. We'll read this out. Invest in companies which are fundamentally strong. आप ये पेनी कंपनीज और पेनी स्टॉक्स एंड ऑल, इन सब के अंदर इन्वेस्ट करने में यू विल हियर कि ये पेनी स्टॉक ले लो, ये इतने गुना हो जाएगा. पहले एक बार ही पढ़ लीजिए फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है. कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स, इनफैक्ट आई विल से नॉट द एनुअल रिजल्ट्स बट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, दे आर पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ BSE एंड NSE. आपको वो जाकर के रिजल्ट्स को खोलना है,
उन रिजल्ट्स को पढ़ना है कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर टू ईयर, वेदर इट इज़ इन अ डिक्लाइनिंग पैटर्न और इट इज़ इन अ ग्रोइंग पैटर्न, आपको वो पढ़ के समझ में आ जाएगा अच्छे से. लर्न टू सेल एट द राइट प्राइस. अब इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, शेयर का प्राइस 10 गुना हो जाता है, मगर फिर भी दैट ग्रीड इज स्टिल देयर. हम चाहते हैं इस स्टॉक प्राइस जो हमने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जो 10 गुना हो गया, अब ये 10 की जगह 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना हो जाए. इट हैज़ हैपेंड विद सर्टन शेयर्स.